Hello everyone, how are you? So today we are going to discuss the magnetic flux density, right hand thumb rule, we'll do some numerical, also harder thinking, and lastly we'll discuss most important law, and it is your Biot-Savart law, right? So let us start our today's class, and is the just continuation of lecture 1, as I already discussed lecture 1 and so many things are there in lecture 1, and I'll continue the next part of this lecture 1, or it is the last part of lecture 1. So let us start. Last day we discussed magnetic flux density. So magnetic flux density, whenever there is a magnetic field, and in a magnetic field whenever any charged particle is moving, then there is a force on this charged particle, and our aim is to find the force acting on this charged particle, right? So let's start our today's class. You see, so here consider a magnetic field V, as I already discussed. So a magnetic field V and a charged particle is Q moving with a velocity V, and last we discussed that the force on it is Fm is equal to Q B V sin theta, correct? Fm is equal to Q B V sin theta, where Fm is the magnetic force on the charged particle Q moving in a magnetic field V with a velocity component V sin theta, making an angle theta with the direction of the magnetic field. That is, velocity vector is making an angle theta with the direction of the magnetic field. Just देख लो, ये चार्ज पार्टिकल है, जो भी बच्चा लास्ट क्लास मिस किया तो वो देखो कि ये है चार्ज पार्टिकल, एंड ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विथ ए वेलोसिटी v by making an angle theta with the direction of the magnetic field, right? So the force is this one. Now if we express it in vector form, as you know that in vector product or cross product, A cross B is equal to AV sin theta n cap, right? So here also the direction of the magnetic field F vector is equal to, charge is a scalar quantity, so keep it outside. Magnetic field is a vector quantity, velocity is also a vector quantity, so V cross V, correct? So this is the vector form, where it is clearly visible to you that the force is normal to the plane formed by velocity vector and magnetic field vector. So whenever any charged particle moving in a uniform magnetic field, there is a force on the charged particle, and that force is always normal to the plane formed by B vector and V vector. Velocity vector and magnetic field vector जो भी plane form करेगा उसी plane का normal क्या होगा? The magnetic force, correct? Understand? ऐसा जैसे कि एक स्टोरी जैसा इसको समझ सकते हैं, जैसे कि दिस इस सपोज किसी का घर है ये, सो ये घर में हियर इज ए डॉग, ठीक, डॉग. नाउ इफ डॉग देन सराउंडिंग दिस इज द फील्ड ऑफ द डॉग, दिस इज द फील्ड ऑफ द डॉग व्हिच वी आर एक्सप्रेसिंग बाय बी. बी इज द फील्ड ऑफ द डॉग, मतलब इसी फील्ड में अगर कोई आदमी आ जाए तो उसको डॉग बाइट करेगा, राइट? नाउ अभी कोई अगर चोर आया, थीफ आया, हाँ, इसी का घर में रात को, तो वो थीफ अगर आके चुपचाप खड़ा रहता है तो उसका ऊपर डॉग कोई फोर्स नहीं देगा. डॉग तो तब फोर्स देगा जब ये थीफ भागने लगेगा, whenever he will move and by making certain angle, जैसा कि 30 डिग्री 40 डिग्री, राइट, नॉट एट 0 डिग्री, मतलब पैरेलल टू द फील्ड नहीं, ये फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसका पैरेलल ही नहीं, कोई भी अदर एंगल में अगर मूव करे तो अगर यहाँ पर रेस्ट में रह जाए तो डॉग बाइट नहीं करेगा. डॉग तो बाइट तब करेगा जब
whenever it will move with a certain velocity by making certain angle. जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो थिफ इस डायरेक्शन में मूव करने से नहीं होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में अभी थिफ का वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम हो गया और एंगल 0 डिग्री हो गया। एंड एंगल 0 डिग्री हो गया तो फोर्स 0 आ जाएगी, क्योंकि तुमको हमें पता है साइन 0 इज 0। सो डॉग का फील्ड एंड थिफ का फील्ड सेम नहीं होना है और एंटी पैरेलल भी नहीं होना है, 180 होने से भी नहीं होगा। सो ये जो डॉग है, ये थीफ जो है, इट इज मूविंग बाय मेकिंग सर्टेन एंगल। जैसा कि ऐसा मूव कर सकते, ऐसा मूव कर सकते, ऐसा मूव कर सकते। एंड इफ इट मूव एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स ऑन दिस थीफ ड्यू टू द डॉग इज मैक्सिमम। सो डॉग जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, इट इज सपोज एज्यूम ये एक फील्ड है जिसका नाम कुछ भी दे दे, हम मैग्नेटिक फील्ड इसका नाम दे दे। और थीफ तो थीफ को क्या है, ये डॉग फोर्स दे रहे, राइट। और इसी का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, ये किसका इसके ऊपर डिपेंड करेगा, डॉग का स्ट्रेंथ का ऊपर। डॉग का अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो जूट से बाइट करेगा जाके, और डिपेंड करेगा किसका, थीफ का मैग्नीट्यूड का ऊपर ऑब्वियसली। एंड डिपेंड करेगा क्या, थीफ का वेलोसिटी का ऊपर। एंड डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ थिफ एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द डॉग। करेक्ट, अंडरस्टैंड? सो दिस इज as simply an analogy on it. So anyway, now try to understand some special cases are there from here. Special cases, see, say special cases. Special cases from this equation. If theta is equal to 0 degree, if theta equal to 0 degree or 180 degree, if theta equal to 0 degree or 180 degree, मतलब if the charge is moving parallel to the magnetic field or anti-parallel to the magnetic field. Suppose magnetic field is in this direction, right now. Here it is given magnetic field is in this direction. So magnetic field is along this direction. And if the charged particle is also moving along the same direction or anti-parallel to that direction, then the force on it is क्या होगा? Fm equal to क्या है? Q BV sin 0. Sin 0 is 0, so force is 0. Right? Okay. Number 2. If B है, if theta is equal to 90 degree, theta equal to 90 degree, Fm is equal to क्या? Fm is equal to QBV. Sin 90 is 1, so force is maximum whenever theta is बोलो जल्दी, theta is 90 degree, then 90 degree, if theta is 90 degree, then the force is maximum, force is minimum or 0 whenever the angle is 0 degree or 180 degree, correct? Now you see third case, if velocity is 0 means charged particle is at rest. If the charged particle is at rest means only the electric field, there is no magnetic field. If the charged particle is at rest, then only the electric field, and there is no force on this due to this magnetic field. This magnetic field will exert the force on this charged particle only when this charged particle is in motion. If the velocity is 0, then force is also 0, correct? And number 4, if Q is equal to 0, if charge is 0, चार्ज अगर 0 हो जाए, अरे बाबा ये अगर 0 हो गया तो इसका एग्जिस्टेंस ये 0 हो गया, तो कैसे होगा? चार्ज 0 है तो इसका ना तो रहेगा बांस, ना तो बजेगा बांसुरी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये चार्ज ही नहीं है। तो कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड, कैसे होगा इसका ऊपर फोर्स आएगा? तो कि इफ चार्ज 0 है तो फोर्स भी 0 ही आएगा, करेक्ट? तो whenever any charged particle moving in a uniform magnetic field,
by making angle 0 degree या 180 degree, the force is 0. Force is only maximum whenever the angle between the velocity vector and magnetic field vector is क्या है 90 degree. And if the velocity of the charged particle is 0, that is charged particle is in equilibrium condition, then also the force is 0, right? और तो चार्ज तो होना ही पड़ेगा, right? Understand? I think here, हाँ clear ना? Okay, चलो. Now try to understand. Now the thing is that from here we may define the magnetic flux density. हाँ सबसे important यही है कि magnetic flux density क्या है, जिसके लिए हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, ये क्या है. तो यहाँ पर define कर लूँगा what is magnetic field intensity. So see, magnetic flux density, अच्छा force, magnetic force Fm is equal to QBV sin theta, correct ना? So magnetic force Fm is equal to QBV sin theta. If Q is equal to 1, V is equal to 1, B नहीं theta equal to 90 degree, then Fm is equal to Q1 V1 sin 90 is 1, then B. Hence magnetic flux density at any point, magnetic flux intensity या magnetic flux density at any point is defined as the force experienced by unit positive charge moving with unit velocity in a magnet by making an angle theta, by making an angle 90 degree or at right angle to the direction of the magnetic field simply. So I repeat it again, magnetic flux density at any point is defined as the force experienced by a unit positive charge moving with unit velocity at right angles to the direction of the magnetic field. Correct? समझ में आ गया? हाँ क्या? ओके चलो, तो यही तो था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ज़्यादा टफ कुछ नहीं है. हाँ तो ये इजी है, जस्ट समझना पड़ेगा, राइट? और कुछ नहीं है दिमाग से. सो यही है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ले लो, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करे तो उसका ऊपर फोर्स तो आएगा ही, और फोर्स डिपेंड करेगा टंग 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 टंग. सो चलो, let us try to understand this right hand thumb rule. What is this right hand thumb rule? Yes, right hand ले लिया. हाँ, ये अगर वेलोसिटी वेक्टर हुआ, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड हुआ, then it should be the magnetic force, right? So you see in different book, different way it is written. Anyone, if you choose this one is the velocity vector, you may choose this one is the, no, that time your right hand screw rule may be different. So here I am considering, see, here I am considering this is the magnetic field vector, right? Sorry, velocity vector. This is the velocity vector, and this is the magnetic field vector. Then V cross B, toe, right? I repeat it again. This is the velocity vector. This is the magnetic field vector. Either do not right at right angle to each other, right? तो ये velocity vector, ये magnetic, ये हुई plane, और उसी plane का करके क्या आया? Magnetic force. समझ गया? ओके, वेरी गुड. यही तो था राइट हैंड थंब रूल. अच्छा चलो, तो समझ में आ गया. ये है मैग्नेटिक फोर्स, तो ये वेलोसिटी वेक्टर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो करके क्या आएगा? मैग्नेटिक फोर्स. करेक्ट? चलो, नाउ लेट अस डू सम न्यूमेरिकल्स. ओके चलो, इजी है, कुछ नहीं, न्यूमेरिकल्स भी नहीं, वो कुछ नहीं है, इजी है. हाँ, जस्ट समझ जाते हो जाएंगे. सो क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस. ओ माय गॉड, ये है एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस से कौन मूव कर रहे हैं? एन इलेक्ट्रॉन. एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस.
in a magnetic field, एक्टिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस. ओके चलो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहे हैं वाई एक्सिस, तो ये मैंने दे दिया एक्स एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है अलॉन्ग वाई एक्सिस. ओके जो बात बोला सुन लेते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन. ओके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट, ओ माय गॉड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट. अरे ये कोई बात हुई. एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई क्या आते हैं, जेड एक्सिस. So obviously what is the direction of the magnetic force, it should be along z axis. x axis में एक आया, y axis में एक, right? तो हो गया क्या, direction of the magnetic force along z axis. ओके चलो ये तो कुछ नहीं था, सिंपली इक्वेशन था. चलो और भी सिंपल ही करूंगा, इतना टफ नहीं करूंगा, धीरे धीरे बढ़ते जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप. ओके चलो. An electron is deflected while passing through a certain region of space. Can we conclude that there is no magnetic field and electric field? अच्छा चलो समझ जाते फिर एक बार. An electron is deflected. Electron is deflected while passing through a certain region of space. एक इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट कर रहा है while passing through the a certain space. Right? An electron is deflected while passing through a certain region of space. So ये certain region of space है, ये बोर्ड है, ये दे देता हूँ, ये certain region of space है. और इनमें क्या आ रहा है, an electron is deflected. ऐसा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऐसा हो गया, ऐसा जा रहे हैं, ऐसा हो गया, ऐसा जा रहे हैं, तो ऐसा हो गया, हो सकता है ना, डिफ्लेक्ट हो गया. ओके डिफ्लेक्ट अगर हुई तो हमारा क्या. ओके हम इसका बाहर कर लेते, हाउ इट विल रिफ्लेक्ट ना, क्या क्वेश्चन पूछा देख लेते. नाउ क्वेश्चन ये है कि कैन वी कंक्लूड दैट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड. डिफ्लेक्ट हुआ, एन इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड, और कैन वी कंक्लूड दैट देयर इज नो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके एज इट इज डिफ्लेक्टेड, फर्स्ट बात मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सप्रेशन देखते हैं. मैग्नेटिक फोर्स Fm is equal to Q B V sin theta as we know, and electric force का एक्सप्रेशन क्या है, F is equal to QE. ये तो दो इक्वेशन है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड, the force exerted by on the charged particle due to the electric field is Fm is equal to QE, and magnetic force के लिए जो magnetic force जो आ रहा है QB वे sin theta. ओके चलो now क्वेश्चन में बोला if it is deflected means there is force, and that's why it is deflected na. Can we conclude that there is no magnetic and electric field. Okay, number 1, as it is deflected इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. If electric field is 0, then there is no deflection. So if electric field is equal to 0, right? If is equal to 0, Fe should be 0. So as this electron is deflected, means electric field never be 0, since force is not equal to 0. Correct? Since force is not 0, so electric field is never be 0. First question हो गया. So electric field never be 0. Correct? Number 2 में चले जाते हैं. Magnetic field का बात. Yes. If it is deflected means force is there. Right? Now magnetic field, force is there. Now magnetic field depend करते हैं charge, magnetic field, velocity, sin theta. Means there may be or may not be the magnetic force, as it is deflected may be due to the electric field. Magnetic field के लिए deflect करने के लिए so many depends on many factors like angle, right? As it is charged particle is there, मतलब means Q is there, moving in a magnetic field it is also okay, or passing through a means velocity is there. Now the thing is that what is the value of theta. Depending on the value of theta, we will understand that whether there is magnetic force or not.
may not be due to the magnetic field, it depends upon the angle. Understand? So conclusion is that there should be electric field, but magnetic field may or may not. It depends upon the angle. Understand? Okay. हाँ क्या टफ लग गया? नहीं, कुछ नहीं. ओके चलो और भी एक दो क्वेश्चंस कर लेते. सिंपल ही है, इतना टफ नहीं है. ओके चलो. Okay. So a proton is moving northwards with a velocity of 5 into 10 to the power 6 meter per second in a magnetic field of 0.1 Tesla directed eastwards. Find the force on the proton. Proton का ऊपर force क्या है? Okay. So I repeat it again. हाँ ये proton is moving northwards. Okay. ये दे देता हूँ मैं north. ये हो गया north. Yeah, proton is moving northwards. Means this is proton moving along towards northwards. With a velocity of 5 into 10 to the power 6 meter per second in a magnetic field of 0.1 Tesla directed eastwards. Directed eastwards. अरे बाप रे बाप, ये तो मेरा नॉर्थ ईस्ट हो गया. हाँ हाँ. सो ये नॉर्थ ईस्ट ही है, सबसे अच्छा सबसे प्यारा हमारा ये नॉर्थ ईस्ट है. सो ये नॉर्थ ईस्ट में, हाँ ये नॉर्थ ईस्ट का नहीं, यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट. नॉर्थ में क्या है? वेलोसिटी वेक्टर, और ईस्ट में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर 0.1 टेस्ला. अरे तो नॉर्थ ईस्ट का बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री का हो गया. तो वैल्यू थीटा का वैल्यू आ गया. सो मीन्स वी यू नो, थीटा यू नो, एंड मैग्नेटिक फील्ड यू नो. अच्छा यहाँ पर तो टेस्ला का डेफिनेशन रह गया. हाँ तो ये टेस्ला भी समझा देता हूँ, एसआई यूनिट. ओके धीरे धीरे ये न्यूमेरिकल्स कर लेता हूँ, इसके बाद विल डिफाइन टेस्ला क्या है, एसआई यूनिट क्या है. ओके चलो धीरे धीरे हो जाएगा. सो फोर्स ऑन द प्रोटॉन लास्ट डे आई थिंक डिस्कस नहीं किया, ये टेस्ला अभी डिस्कस कर लूंगा. मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा. करेक्ट. तो चार्ज कितना है? चार्ज कितना है? ए प्रोटॉन मीन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0.1 टेस्ला. विद ए वेलोसिटी कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर 6 साइन 90. करेक्ट. ओके तो हो गया 1.6, तो होगा ये तुम्हारा 1.6 0.16 इंटू 5 आई थिंक 0.8 ना, 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 माइनस 13. तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 न्यूटन आ गया. यही तो हुई क्या? हाँ नॉर्थ. हाँ ये तो इतना इजी है, कोई टास्क कुछ नहीं है. हाँ इजी है. सो एक एक टर्म्स का समझना पड़ेगा, एक एक टर्म्स का समझना पड़ेगा. फिजिक्स में वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक एक टर्म्स, एक एक चीजें समझना पड़ेगा. यू कैन नॉट स्किप एनी लाइन, राइट? कैन नॉट स्किप एनी लाइन. ओके चलो. अच्छा यहाँ से मैं ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वो भी समझा लेता हूँ. सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का ऐसा यूनिट so unit of magnetic flux density and unit of magnetic flux density. Okay, so magnetic flux density, as already I told, Fm is equal to q b v sin theta. Fm is equal to QBV sin theta. Many students ask me the question like that, why I am not speaking in Bengali, and you know my Hindi is also not proper, as already all of you know. But the thing is that so many students are from different part of India,
Today or last day I observed that some students are from Kolkata, some Rajasthan or some many other places. So thank you everyone, those who are watching from other part of India. And the thing is that yes, हिंदी यूज़ करता हूँ क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स बाहर में से है, और नॉर्थ ईस्ट में, मेरा नॉर्थ ईस्ट का अभी बात हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में ऐसा बहुत सारा जगह है जहाँ पर हिंदी में बंगाली तो बिल्कुल समझ में नहीं आता. दैट्स वाई ओनली फॉर देम, जो कि डिफ़िकल्टीज मेरा भी होता है कि ये एज आई एम ए बंगाली एंड सो समटाइम्स आई फील ऑल्सो डिफ़िकल्ट विथ हिंदी, बट मैं कुछ सहन कर लेता हूँ और आपके लिए तो सब कुछ मैं कर दूंगा. और क्या है, लेकिन फिजिक्स समझना है. देखो मेरा बात में क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, और क्या हिंदी आता है या नहीं आता है, उससे मजाक छोड़ दो. पढ़ो तो फिजिक्स समझो. अगर फिजिक्स समझ लिया ना और इसके बाद बोलना हाँ सर आपका हिंदी बहुत बुरा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, समझ गया क्या बोला? हाँ, ओके. सो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज तो कितना सारा लैंग्वेजेस है, कितना सारा इंडिया में कितना सारा लैंग्वेजेस है. हाँ, सो ये है कि मैक्सिमम लोगों को समझ में आए, मैक्सिमम स्टूडेंट के पास जाए ये जो भी बोल रहा हूँ, तो इसीलिए हिंदी यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बंगाली यूज़ करने में भी कोई दिक्कत नहीं है. बुझो कितना कोई सी. ओके चलो. सो द थिंग इज दैट एसआई यूनिट का बात कर रहा होता नाउ. और नाउ यू सी एसआई इन एसआई सिस्टम. In SI system, Q is equal to 1 coulomb, right? V is equal to don't know. Okay, छोड़ो. Q is equal to 1 coulomb दे दिया. B का बाद में आ जाऊंगा. Fm is equal to 1 Newton, right? V is equal to 1 meter per second. Theta is equal to 90 degree. Then B is equal to 1 Tesla, 1 T, 1 Tesla, TSLA. So ये समझना पड़ेगा. SI unit of magnetic flux density is Tesla. Tesla, SI unit of magnetic flux density is Tesla, and is defined as magnetic flux density at any point is said to be 1 Tesla. If a charge of 1 coulomb, a charge of 1 coulomb when moving with a velocity of 1 meter per second at right angle to the direction of the magnetic field experience a force of 1 Newton. हाँ, बहुत मजेदार, फिर से एक बार दिखा देता हूँ. Magnetic field strength at any point is said to be 1 Tesla. If a charge of 1 coulomb moving with a velocity of 1 meter per second at right angle to the magnetic field experience a force of 1 coulomb. वाह 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 वाह, क्या बात. At that point, तो ये हुई टेस्ला. अभी और भी एक यूनिट है, बहुत सारे लोगों ने इसका भी यूज करते हैं, जिसे गॉस कहते हैं. तो 1 गॉस इज इक्वल टू 10 to the power -4 टेस्ला. ये रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस. ओके, समझ में आ गया? ओके ओके, ये हुई तो टेस्ला का बात. हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का ऐसा यूनिट, बहुत सारा यूनिट होते हैं, तो एक एक करके. तो ये यूनिट ऐसे ही मतलब याद रखने ला कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज सेड टू बी 1 टेस्ला वगैरह. एनीवे, चलो. So let us do the next one. So next one is our, oh my god, ये तो आई. A copper wire has 1.0 into 10 to the power 29 free electrons per centimeter cube. ओके चलो. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब क्या है? इट इज करंट डेंसिटी. ओके, 1.0. अरे 1.0 छोड़ो ना, क्या 1.0, 10 to the power 29 free electrons per meter cube, right? And cross sectional area A is equal to 2 mm square. अरे mm square, इसको सेंटीमीटर में लेके जाओ. 2 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर. खत्म काम. और क्या है? and carries a current of I equal to 5 ampere. The wire is placed at right. Wow, theta equal to 90 degree.
एंड टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, V इज इक्वल टू 0.15 टेस्ला। अभी कैलकुलेट द फोर्स, तो फोर्स क्या है, फोर्स F इज इक्वल टू Fm इज इक्वल टू Q B V sin theta, ओके ना, ऑल ऑफ वी नो। नाउ हियर यू सी Q B V का वैल्यू क्या आएगा, ओके, I इज इक्वल टू एनी एवीडी, ऑल ऑफ वी नो दैट। हाँ, यहाँ से फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी I इज इक्वल टू एनी एवीडी, फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी I इज चप्पे कहाँ से कुछ आ जाते हैं, I इज इक्वल टू एनी एवीडी। यहाँ से आ गया वेलोसिटी, यहाँ से वेलोसिटी आ गया, V इक्वल टू क्या आएगा, I बाई एनी ए, सो I बाई एनी ए एंड साइन थीटा। तब ये चार्ज, ये भी चार्ज हटो, बी आई बाई एन ए क्या है, चार्ज कैंसल, साइन 90 इज 1, तो रह गया बी आई बाई एन। हाँ वही तो, फाइनली वही तो। अभी b का वैल्यू बेटा दो, और f इज इक्वल टू b का वैल्यू क्या है 0.15, करेक्ट। I क्या है 5, ओके भाई, n कितना है, n 10⁻29, और a क्या है 10⁻6, सारे को मिला दो, 10⁻2 × 10⁻6, 2 × 10⁻6, ओके, 2 × 10⁻6, सो 2 × 10⁻6, सो हो गया 0.75 बाई 2, 0.375, ओके, 10⁻29 - 6 - 23, ओके ना, इसको करे तो 3.75 × 10⁻24, यस, दिस इज द वैल्यू, 3.75 × 10⁻24, ओके। So this is the this is the force, okay, so the force is here, okay, understand, no problem, चलो, so let's do the next one. न्यूमेरिकल्स का बार बार मैं जो बोल रहा हूँ कि बार बार ये कि न्यूमेरिकल्स के लिए फिजिक्स को थोड़ा सा सही ढंग से हाँ पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो ये तो सारे इजी है, टफ में जाऊंगा धीरे धीरे, जी का करूंगा, नीट का करूंगा धीरे धीरे। एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ मास 6.25, ओके, अल्फा पार्टिकल का मास कितना है 6.65 × 10⁻27 kg, इज ट्रैवलिंग एट राइट एंगल, ओके, ये दो पार्ट कर देता हूँ, traveling at मतलब theta is equal to 90 degree to a magnetic field with speed 6 × 10⁵ meter per second. The strength of the magnetic field is 0.2 Tesla. Calculate the force on the particle and the acceleration. Force बाहर करो, acceleration, अरे force बाहर करने से तो acceleration तो ऐसे ही आएगा ना रे बाबा, क्या कहते हो। So Fm is equal to F is equal to क्या है Q B V sin थीटा। अरे बेटा देखो Q का वैल्यू क्या है, अल्फा पार्टिकल मतलब चार्ज ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, 2G, ओके, तो 2G इंटू B, ओके, 2G, तो 2G क्या है लिख दो, 2G एक साथ लिखो, 2 इंटू E का वैल्यू 1.6 × 10⁻9, B क्या है B 0.2, भी क्या है 6 × 10⁵, बेटा दो, साइन 90 तो 1 है, क्या है कुछ नहीं, अभी इसका करो सॉल्व, और F इज इक्वल टू M है, यहाँ से तो F का वैल्यू आ जाएगा, अभी M के फोर्स को लगा दो M, अभी करो A में, सो A में करने से आएगा यहाँ पर, हाँ इसका कर लेना, ओके, मैं करके दे देता हूँ, ओके, 2 इंटू हुआ क्या 0.64 शायद 0.64 इंटू 10⁻⁻14, ओके, ये हुई न्यूटन। अभी इसको लगा दो, A इक्वल टू क्या होगा, मास इधर आ जाएगा 0.64 इंटू 10⁻4 डिवाइड बाई मास कितना है, मास 6.65 इंटू 10⁻27, ओके, सभी को लगा दो, हाँ आ जाएगा वैल्यू, ओके,
समझ गया? हाँ ओके, एनर्जी नहीं कमना चाहिए, हाँ एनर्जी गया तो गया, सब कुछ गया। ओके चलो, तो ये दो कि अच्छा नोट कर लिया, हाँ ओके चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। अरे हायर ऑर्डर थिंकिंग। सो ये तो तुम्हारे लिए दो क्वेश्चन है, नन्ना सा प्यारा सा दो क्वेश्चन है, इसको समझना चाहिए प्यार से, इसको समझना प्यार से, इसका करना। हाँ ये दोनों का नाम भी दे देता हूँ, इसका नाम क्या है, ये सुंदर सा सुशीला है, उसका नाम है सुशीला। हाँ उसका करके देना। और है वो हैंडसम एक लड़का है, हाँ वो उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या देता है, क्या 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 क्या, हाँ इसका हैंडसम है ऐसा, इसका नाम क्या है, बिप्टू। चलो ये दोनों करके देना, ठीक है चलो। हाँ ये दोनों करके जल्दी जल्दी भेज देना। ओके चलो, बायर्ट-सवर्ट लॉ, यस दिस इज द मोस्ट वेटिंग एक्साइटिंग लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इट इज योर बायर्ट-सवर्ट लॉ। ये एक क्या है, की पॉइंट जैसा काम करते हैं। अगर मैग्नेटिज्म समझना है, मैग्नेटिक फोर्स को समझना है, सो इंपॉर्टेंट होता है क्या, बायर्ट-सवर्ट लॉ। So we'll try to understand the बायर्ट-सवर्ट लॉ। आज पूरा नहीं होगा, जस्ट इंट्रोडक्शन करके रख दूंगा बायर्ट-सवर्ट लॉ एंड देन विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट क्लास। ओके सो बायर्ट-सवर्ट लॉ क्या है, जस्ट वही पार्ट बोल रहा हूं कि बायर्ट-सवर्ट लॉ which is very much important to find the magnetic field intensity due to a wire carrying current। वो चाहे सर्कुलर हो, स्ट्रेट हो, सो मेनी शेप का होगा, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे कि हमने लास्ट डे का समझा कि इफ वी कंसीडर एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसे करंट कैरिंग, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट करंट करंट, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड हो, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, एंड एवरी पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग बायर्ट-सवर्ट लॉ। सो ये बायर्ट-सवर्ट लॉ हम समझेंगे, अच्छे तरह से समझेंगे, कोई भी बहुत सारा एग्जाम्पल लूंगा, तो विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट क्लास। ओके सो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक बात है कि जो भी न्यूमेरिकल्स दिया हो सारे न्यूमेरिकल्स कर लेना टाइमली और मुझे भेज देना, ठीक है ना? हाँ ओके चलो बाय बाय।